फैक्ट चेकिंग के नाम पर भारत की विचार स्वतंत्रता पर सॉफ्ट पावर का शिकंजा। यह लेख अदिति जोशी के द्वारा लिखा गया है। फैक्टशाला ने 75,000 से ज्यादा भारतीय मीडिया पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है। इसे भले मीडिया साक्षरता और फेक न्यूज से लड़ाई कहा जाता है, लेकिन इसकी सोच पश्चिमी उदारवाम विचारों से जुड़ी है। यह पत्रकारिता को भारतीय दृष्टि से दूर कर। In recent years, India has seen a surge in fact-checking and media literacy programs that claim to fight misinformation and strengthen journalistic standards. These initiatives are often promoted as neutral and civic-minded efforts to build public awareness and critical thinking. Among them, Factshala stands out for its scale and international connections. Supported by the United States Agency for International Development, USAID, and implemented through Indian partners such as DataLeads, Alt News, and the Sambhavna Institute, Factshala claims to have trained more than 75,000 media professionals across the country. Its leadership and mentors include some of India's most recognized media figures, Rita Kapoor of The Quint, Shekhar Gupta of The Print, J.M. Matthew of Malayalam Manorama, and Faye D'Souza of Beetroot News, placing the initiative firmly within the country's mainstream media establishment. On the surface, Factshala appears to be a forward-looking program dedicated to improving media literacy and encouraging responsible reporting. Yet beneath this educational mission lies a deeper tension. Its design, funding, and institutional partnerships suggest that it also serves as a channel for importing Western ideas about truth, objectivity, and democracy. While the program may help participants sharpen journalistic skills, its underlying outlook reflects a particular ideological stance, one that aligns with global liberal left assumptions often presented as universal. This creates an uneven field where certain worldviews are elevated as neutral, while others, especially those rooted in indigenous or Dermic traditions, are marginalized as biased or regressive. Such efforts form part of a larger global pattern where development aid and capacity building initiatives double as instruments of soft power. Through programs like Factshala, external actors shape not only how facts are verified but also how truth itself is defined. In a diverse and civilization-ally complex country like India, this dynamic risks narrowing the space for homegrown perspectives, traditional reasoning, and culturally grounded ideas of knowledge and ethics. This essay examines Factshala as more than a media training project. It explores how foreign funding, institutional networks, and ideological influence intersect to shape India's media and information ecosystem. By tracing these links, it argues that the battle over misinformation is not only about verifying facts, it is also about who holds the क्रमों के जरिए बाहरी शक्तियां न केवल तथ्यों की जांच का तरीका तय करती हैं, बल्कि सत्य की परिभाषा को भी तय करने का काम करती हैं। भारत जैसे विविध और प्राचीन सांस्कृतिक देश में यह प्रवृत्ति स्थानीय सोच और पारंपरिक नैतिकता की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है। यह लेख फैक्टशाला को सिर्फ एक मीडिया प्रशिक्षण परियोजना नहीं, बल्कि एक व्यापक वैचारिक प्रक्रिया के रूप में देखता है। इसमें दिखता है कि विदेशी धन, संस्थान और विचारधाराएं मिलकर भारत के मीडिया और सूचना तंत्र को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इन संबंधों का विश्लेषण करते हुए लेख यह तर्क देता है कि मिसइन्फॉर्मेशन पर चल रही लड़ाई केवल तथ्यों की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बड़े सवाल से जुड़ी है कि सत्य को परिभाषित करने का अधिकार किसके पास है और भारत के सार्वजनिक विमर्श की authority to define truth and whose voices set the boundaries of India's public discourse. The ecosystem of influence Factshala structure offers a clear example of how media education can evolve from a tool of professional training into an instrument of ideological influence. Rather than simply teaching journalists to verify facts, it subtly shapes the very frameworks through which truth, bias, and legitimacy are defined in India's media space. This influence becomes clearer when one looks at the program's scale and reach. Factshala's claim of training more than 75,000 Indian media professionals is important not just for its size, but also because it represents the spread of a particular way of thinking about news, truth, and objectivity. The number reflects the scale at which certain ideological ideas are being absorbed within India's media space.
Although described in the language of media literacy and fighting misinformation, Factshala's teaching model closely mirrors Western liberal left frameworks. These frameworks are often presented as universal principles of fairness and rational inquiry, but in practice, they tend to standardize journalism according to Euro-American assumptions while downplaying India's own intellectual and civilizational perspectives. As a result, journalists trained through such programs may unconsciously adopt biases that weaken traditional ways of reasoning, diminish cultural memory, and overlook ethical ideas rooted in Dharmic thought. At the institutional level, DataLead serves as the principal implementing body of Factshala, organizing workshops that operationalize these epistemic premises through modules on verification, source evaluation, and information credibility. On the surface, these topics seem neutral and professional. However, the examples, case studies, and materials used in these sessions often reflect left liberal interpretations of what constitutes reliable information or credible journalism. This framing is reinforced by the involvement of Alt News, a prominent fact-checking outlet that has frequently been criticized for targeting right-leaning or Hindu nationalist narratives more aggressively than others. By serving both as a partner in the project and as an authority on what qualifies as truth, Alt News influences the overall orientation of the program and embeds its ideological preferences within the structure of media training itself. खबरें कैसे दिखाई जाती हैं और दुनिया भारत को किस नजर से देखती है? जो पहल ऊपर से मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ाने जैसी लगती है, वह असल में प्रभाव का जरिया भी बन सकती है। स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने के बजाय यह रुझान बौद्धिक निर्भरता बढ़ाने का खतरा पैदा करता है, जहां भारतीय पत्रकारिता अपनी सांस्कृतिक और दार्शनिक पहचान खोकर पश्चिमी नजरिए की परछाई बनती जा रही है। इस वैचारिक ढांचे की जड़ें केवल देश के भीतर की संस्थाओं तक सीमित नहीं है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट पावर की भूमिका भी स्पष्ट दिखती है। सॉफ्ट पावर और संप्रभुता का आयाम यूसेज से मिलने वाले वित्तीय स्रोतों की जांच बहुत जरूरी है। 1961 में स्थापना के बाद से यूसेज सिर्फ मानवीय सहायता या आर्थिक विकास का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह अमेरिका की सॉफ्ट पावर का एक अहम हिस्सा बन गया है। ऐसा जरिया जिसके जरिए राजनीतिक मूल्य, शासन के मॉडल और मानक ढांचे विकास सहायता के नाम पर दूसरे देशों तक पहुंचाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और उपनिवेशोत्तर अध्ययन के विशेषज्ञों ने दिखाया है कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में यूसेड की गतिविधियां अक्सर आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर शासन और समाज की वैचारिक दिशा को प्रभावित करती हैं। लोकतंत्र, मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता जैसी अवधारणाएं, जो ऊपर से सार्वभौमिक लगती हैं, असल में अमेरिकी वैचारिक ढांचे के मुताबिक परिभाषित और लागू की जाती हैं, जिससे साझेदार देशों की संस्थाओं में पश्चिमी उदार लोकतांत्रिक सोच गहराई तक बैठ जाती है। इसी संदर्भ में फैक्टशाला एक निष्पक्ष मीडिया साक्षरता अभियान के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक प्रवृत्ति के हिस्से के रूप में सामने आती है, जहां क्षमता विकास असल में वैचारिक एकरूपता का दूसरा रूप बन जाता है। यूसेज से इसके वित्तीय और संस्थागत संबंध इसे उस बड़े वैश्विक अभियान से जोड़ते हैं, जो भारत के मीडिया और सूचना क्षेत्र में उदारवामपंथी आख्यानों को गहराई तक स्थापित करना चाहता है। फेक न्यूज और हेट स्पीच जैसे विषयों पर केंद्रित यह कार्यक्रम देखने में निष्पक्ष लगता है, लेकिन वास्तव में यह ऐसे ढांचे के भीतर काम करता है जो कुछ दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाता है और दूसरों को हाशिए पर डाल देता है। भारत जैसे देश में, जहां सभ्यतागत विविधता और विचारों का टकराव सार्वजनिक जीवन का स्वाभाविक अंग है, ऐसा ढांचा गहरा असर डालता है। यहाँ सत्य या घृणा की परिभाषा राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों से अलग नहीं की जा सकती। इसलिए यह मुद्दा केवल पत्रकारिता प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहता, यह राष्ट्रीय संप्रभुता और बौद्धिक स्वतंत्रता का भी प्रश्न बन जाता है। जब बाहरी धन से चलने वाले कार्यक्रम भारत में सत्य और विश्वसनीयता के मानक तय करने लगते हैं, तब वे यह अधिकार भी अपने हाथ में ले लेते हैं कि वैध ज्ञान क्या है। जब
फेक न्यूज और मिसइंफॉर्मेशन जैसे शब्दों को पश्चिमी नजरिए से समझा जाता है, तो वे निष्पक्ष नहीं रहते, वे राजनीतिक उपकरण बन जाते हैं। इसका असर यह होता है कि हिंदू सभ्यतागत या राष्ट्रवादी दृष्टिकोणों को प्रचार बताकर दरकिनार किया जाता है, जिससे भारत की बौद्धिक और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। यह स्थिति भारत की लोकतांत्रिक और बौद्धिक स्वायत्तता के केंद्र में कुछ गहरे प्रश्न उठाती है। भारत के मीडिया क्षेत्र में सत्य तय करने का अधिकार किसके पास होगा? क्या पत्रकारों और नागरिकों को सचमुच स्वतंत्र सोच सिखाई जा रही है, या उन्हें किसी तय वैचारिक दायरे में सोचने की आदत डाली जा रही है? क्या ऐसी पहलें भारत में लोकतंत्र, सांप्रदायिक सद्भाव और अभिव्यक्ति की आजादी पर होने वाली बहसों को इस तरह बदल रही हैं कि वे बाहरी राजनीतिक और वैचारिक हितों के अनुरूप हो जाएं? वैश्विक दक्षिण में विदेशी फंड से चलने वाले कार्यक्रमों के इतिहास को देखें तो फैक्टशाला एक नए तरह के असर का उदाहरण बनती है। अब संप्रभुता की लड़ाई सिर्फ सीमाओं या अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि सोच और संस्कृति के क्षेत्र तक फैल गई है। मीडिया ट्रेनिंग और साक्षरता अभियान अब ऐसे जरिए बन गए हैं जिनसे किसी देश की पहचान और ज्ञान की परिभाषा तय की जाती है। जो पहल बाहर से शैक्षणिक और निष्पक्ष दिखती है, वही धीरे धीरे ऐसा माध्यम बन सकती है जो भारत की अपनी नज़र से सत्य को परिभाषित करने और अपनी कहानी कहने की क्षमता को सीमित कर दे। भारत की वैश्विक छवि पर प्रभाव भारतीय प्रवासी समुदाय, खासकर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में, अब भारत से सीधे अनुभवों के जरिए नहीं, बल्कि वैश्विक मीडिया, विश्वविद्यालयों और एडवोकेसी नेटवर्कों के माध्यम से जुड़ता है। इसका असर यह है कि कई प्रवासी भारतीय अपने देश को पश्चिमी मीडिया, थिंक टैंकों और एनजीओ की नज़र से देखते हैं, न कि अपने खुद के अनुभवों से। इस वजह से उनकी सोच ऐसे ढांचों से प्रभावित होती है जो भारत की असली सभ्यतागत और सामाजिक सच्चाइयों से अलग होते हैं। फैक्टशाला जैसी फैक्ट चेकिंग पहलें, जो पश्चिमी फंडिंग और विचारधारा प्रभावित है, भारत की राजनीति और समाज को एक खास उदारवामपंथी नजरिए से पेश करती है। यह असर धीरे धीरे प्रवासी भारतीयों की सोच में भी दिखने लगता है। इसके नतीजे में भारत की जो छवि बनती है, उसमें सांप्रदायिकता, लोकतंत्र का पतन और बहुसंख्यवाद जैसे विषय ज्यादा उभरते हैं, जबकि भारत का असली बहुल और जीवंत चरित्र पीछे छूट जाता है। यह प्रवृत्ति एक ऐसा चक्र बनाती है जो खुद को बार बार मजबूत करता है। पश्चिमी मीडिया संस्थान, जो थिंक टैंकों और मानवाधिकार संगठनों से जुड़े होते हैं, भारतीय फैक्ट चेकर्स को निष्पक्ष मानते हैं और उद्धृत करते हैं। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है, भले ही भारत में उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हों। प्रवासी भारतीय जब इन्हीं बातों को मीडिया या विश्वविद्यालयों में दोहराते हैं, तो यह पश्चिमी संस्थानों और प्रवासी समुदाय के बीच एक प्रतिध्वनि कक्ष बना देता है, जहां भारत को उसकी असली सभ्यतागत दृष्टि के बजाय एक पश्चिमी आलोचनात्मक नजरिए से देखा जाता है। इस वैचारिक प्रवाह के परिणाम केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि ठोस और व्यापक हैं। नीति एडवोकेसी, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में प्रवासी लॉबिंग अब फैक्ट चेकिंग के वैचारिक असर को दिखाने लगी है। संसदों में होने वाली बहसें, मानवाधिकार रिपोर्टें और नीतिगत चर्चाएं उसी सोच को दोहराती हैं। इसका असर आव्रजन नीति, व्यापार वार्ताओं और विदेशी सहायता पर भी पड़ता है। भारत के आंतरिक मुद्दे अब नैतिक और राजनीतिक औजार बन जाते हैं, जिनका इस्तेमाल विदेशी सरकारें कूटनीति और व्यापार में दबाव बनाने के लिए करती हैं। कैंपस राजनीति, विश्वविद्यालयों में, विशेषकर मानविकी और समाजशास्त्र के क्षेत्रों में, छात्र संगठन और अकादमिक मंच भारत के लोकतंत्र पर फैक्ट चेकर्स की व्याख्याओं को अपनाने लगे हैं। इससे भारतीय मूल के छात्रों के बीच नए वैचारिक विभाजन उत्पन्न हुए हैं, जो भारत की आंतरिक राजनीतिक रेखाओं की झलक देते हैं।
अब पश्चिमी विश्वविद्यालय भारत की वैचारिक जंग का केंद्र बन गए हैं, जहां धर्मनिरपेक्षता, जाति और राष्ट्रवाद पर बहस भारतीय सोच के बजाय पश्चिमी नजरिए से होती है। सामुदायिक पहचान, प्रवासी हिंदू और भारतीय सांस्कृतिक संगठन अक्सर इन पश्चिमी आख्यानों का सामना करते हुए या तो रक्षात्मक रुख अपनाते हैं या टकराव से बचने के लिए खुद को पश्चिमी उदार नैतिकता के अनुरूप ढालने लगते हैं। यह प्रवृत्ति सामूहिक आत्मविश्वास को कमजोर करती है और सभ्यतागत पहचान को बंटी हुई और प्रतिक्रियात्मक बनाती है। जहां पहले गर्व था, वहां अब वैचारिक समझौते की झलक दिखाई देने लगती है। इस माहौल में प्रवासी भारतीय अनजाने में उन आख्यानों को और फैलाने लगते हैं जो विदेशी फंडिंग से चलने वाली पहलों से पैदा हुए हैं और पश्चिमी संस्थानों द्वारा वैध ठहराए गए हैं। जो कार्यक्रम शुरू में मीडिया साक्षरता के नाम पर शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे एक वैश्विक तंत्र बन जाता है जो तय करता है कि भारत को दुनिया में कैसे देखा और समझा जाए। इसका नतीजा यह होता है कि भारत की छवि अब भारतीयों द्वारा नहीं, बल्कि बाहरी संस्थाओं द्वारा बनाई जाती है, जो अपने विचारों को सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है। यह प्रक्रिया भारत की ज्ञानात्मक संप्रभुता, अर्थात अपनी कहानी खुद कहने की क्षमता, को धीरे धीरे कमजोर करती है। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान उसकी सभ्यतागत आवाज की अभिव्यक्ति कम और बाहरी वैचारिक अपेक्षाओं का प्रतिबिंब ज्यादा बनती जा रही है। ये वैश्विक आख्यान सिर्फ पश्चिमी मीडिया या प्रवासी मंचों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि भारत के भीतर भी लौट आते हैं। भारतीय पत्रकार, नीति निर्माता और नागरिक जब इन्हीं नेटवर्कों द्वारा वैध ठहराई गई आलोचनाएं देखते हैं, तो उन्हें पेशेवर ईमानदारी या लोकतांत्रिक मूल्यों का मापदंड मान लेते हैं। धीरे धीरे यह एक ऐसा चक्र बनाता है जहां बाहरी मूल्यांकन और आत्मधारणा की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और भारत के बौद्धिक व सूचना परिदृश्य में गहरे बदलाव की नींव पड़ती है। समापन टिप्पणी। अब भारत में सूचना को लेकर संघर्ष सिर्फ सही या गलत तथ्यों का नहीं, बल्कि अर्थ और पहचान की व्याख्या का हो गया है। फैक्टशाला जैसे कार्यक्रम, जो विदेशी धन और विचारों से प्रेरित हैं, धीरे धीरे ऐसे ढांचे में बदल जाते हैं जो समाज में सत्य और वैधता की परिभाषा तय करते हैं। यह हालात भारत की दोहरी स्थिति को उजागर करते हैं। एक ओर राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, तो दूसरी ओर विचार और ज्ञान के क्षेत्र में जारी बौद्धिक निर्भरता अब भी बनी हुई है। भारत की सभ्यतागत एकता की रक्षा के लिए केवल मिसइन्फॉर्मेशन का प्रतिरोध काफी नहीं, जरूरत है उस स्वतंत्र सोच की जो भारतीय दर्शन, नैतिकता और तर्क की परंपराओं से निकलती है। मीडिया शिक्षा को भी विदेशी मॉडलों से आगे बढ़कर भारतीय दृष्टिकोण को केंद्र में लाना होगा। असली जरूरत केवल सटीक पत्रकारिता की नहीं, बल्कि उस दृष्टि की है जो भारत के अपने इतिहास और परंपराओं से वास्तविकता को समझने की क्षमता फिर से स्थापित करे। इसलिए सत्य का भविष्य इस पर निर्भर है कि तथ्यों की व्याख्या किस दृष्टिकोण से की जाती है, न कि जांच कौन करता है।